हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.3 ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ NCERT ਦੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਥਡ ਤੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੇਸਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.3 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखते हैं कि किस तरीके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स जोड़े पहली वेर अपने चैनल पर आए हैं वो चैनल सबसक्राइब कर तो बैल आइकन दबाओ तो जो पढ़ाने का ढंग वधिया लगे तो अपने फ्रेंड्स नाल भी शेयर कर लाइक जरूर कर। जोड़ा आप पढ़ रहे हैं ये सारा मटीरीयल इन्हों के PDF नोट्स तो क्वेरीज डिस्कस करने के लिए आप एक टैलीग्राम चैनल बनाया वह नाम है मेक मैथ्स ईजी विद सतिंदर सर। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਗਿਵਨ ਆ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ PDF ਨੋਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4th ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ ਆਫ ਰਹਿਮਾਨਸ ਏजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रैजेंट एज। आप प्रैजेंट एज फाइंड करनी है तो दो अलग अलग टाइम तो वो एजिज की गल की है। आप अज्यूम कर लें लेट प्रैजेंट एज ऑफ रहमान इज X ईयर्स। आप प्रैजेंट एज मान लें X ईयर्स तो उन्हें दो अलग अलग टाइम पर गल की है। एक 3 years एगो आप लिखते हैं 3 years एगो एज ऑफ रहमान 3 साल पहला कितनी होएगी जे अज एक्स है तो 3 साल पहला 3 घट होएगी एक्स माइनस 3 years ते 5 years फ्रॉम नाउ 5 years फ्रॉम नाउ जे अज एक्स है तो अज तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 होएगी ते उन्हें गिवन अ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕੀ ਹੈ 1/x - 3 ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/x + 5। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮ ਆਫ देयर ਰੈਸਿਪਰੋਕਲਸ ਇਜ਼ 1/3। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/3 ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ x + 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਐਜ ਇਟ ਰਹੇ ਨਾ x - 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ x² + 5x - 3x - 15 is equal to 1/3। फर्दर सिंप्लीफाई करके x + x यूनिट 2x 5 - 3 + 2 डिवाइड बाई x² 5x - 3x + 2x - 15 is equal to 1/3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। 3 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਗਾ 6x + 6 is equal to x² + 2x - 15। सारिया टर्म्स आप एक साइड पर लेने ये अपना बनना x² + 2x - 15 ये 6x उधर जाके बनना -6x ये 6 उधर जाके बनना -6 is equal to 0। फर्दर सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हैं x² ये 2x - 6x -4x -15 -6 -21 is equal to 0। कोई भी मर्जी मैथड ला दो। आप किन्ने पढ़े कंप्लीटिंग स्केयर मैथड ला दो ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ -4x ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਦਾ -21 -7x + 3x -21 is equal to 0। ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮ ਆਏਗਾ -4x प्रोडक्ट करेंगे तो सम प्रोडक्ट आएगा -21 x²। इस तो नैक्सट सिंपलीफाई करने का तरीका अपना की है पहले दो टर्म्स विचों x कॉमन
बाकी रह गया x माइनस 7। नैक्सट दो टर्म में 3 कॉमन, बाकी रह गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन्हों दोनों विचों x माइनस 7 कॉमन लैके इत्थे बचा x, इत्थे बचा 3 इज इक्वल टू 0। जो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होंगे तो ज़्यादा पहली टर्म 0 होएगी या अपनी दूसरी टर्म 0 होएगी। इतों आप कह सकते हैं x की वैल्यू 7 आ गई, इतों x की वैल्यू -3 हैगी। जी एज आ किसी भी परसन की वो नैगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो आप लिखांगे कि रहमान की एज जी वो कितनी होएगी 7 ईयर्स। तो नैक्सट आप प्रॉब्लम नंबर 5 गिवन है। 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ in a class test the sum of Shafali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. Shafali ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, एक मैथ्स ਵਿੱਚ ਤੇ दूसरा इंग्लिश ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ 30 ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਹਰ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਬੋਥ ਦ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੈਟ ਹਰ ਸਕੋਰ ਇਨ ਮੈਥਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ x, ਸੀ ਸਕੋਰਡ x ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਟੋਟਲ ਜੇ 30 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ ਬਾਕੀ 30 माइनस x। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਡ ਸੀ ਗॉट 2 ਮਾਰਕਸ ਮੋਰ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਜੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ x ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ x + 2, 2 ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 3 ਮਾਰਕਸ ਲੈਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜੇ ਇਥੋਂ 3 ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 3 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣੇ ਨੇ 27 - x। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ देयर ਮਾਰਕਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਕਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ 210। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 210। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਹਰ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x ਨੂੰ 27 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 27x ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ 2 × 27 54, 2 × minus x minus 2x is equal to 210। सारियां टर्म्स आप दूसरी साइड ला लेने, उधर आके एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये अपना 27x माइनस 2x बन गया प्लस 25x, उधर जाके बन गया है माइनस 25x 210 माइनस 54। 210 जो आप माइनस 54 करेंगे तो कितना बनना प्लस 156। तो इत्थे आप कोई भी मैथड ला सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਬਣਨਗੇ 13 ਐਂਡ 12 ਮਾਈਨਸ 13x ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 12x ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ ਮਾਈਨਸ 25, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ 156। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ 1, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ -25 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ 156। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ b ਸਕੁਅਰ -4ac ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ -25 ਸਕੁਅਰ -4 into a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ into c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 156 -25 ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 625, 4 into 1 4, 4 into 156 बन गया अपना 624 इज इक्वल टू 1। ये अपना ग्रेटर दैन 0 मीन के पॉजिटिव नंबर आ तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आप इतों लिख दें कि x की वैल्यू अपनी की हैगी, x की वैल्यू फिर अपनी होंगी हैगी नैगेटिव ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 into a। तो जे आप सारी वैल्यूज इतने भरीए तो आप कह सकते हैं
कि x की वैल्यू की है माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ -25 प्लस 25 प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4 इसकी वैल्यू अपनी आई थी 1, तो 1 का स्केयर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये सॉल्व करके अपना आ गया 25 प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट 1 ही होगा डिवाइड बाई 2, तो एक बार आप प्लस के नाल लिखांगे, एक बार आप माइनस के नाल लिखांगे। तो पहली बार अपना की आएगा जो आप एक्स की वैल्यू लिखते हैं प्लस के नाल, ते दूसरी आप लिखांगे माइनस के नाल। प्लस के नाल लिख के आना 25 प्लस 1 26/2, इतों बना 25 माइनस 1 24/2, इतों एक्स की वैल्यू होनी 13, इतों एक्स की वैल्यू होनी 12। तो दो केसेस पॉसिबल ने, तो जो फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू आप 13 जूम करिए तो आप कह सकते हैं कि हर स्कोर्स इन मैथ्स, पहला केस की है जे मैथ्स में 13 मार्क्स ने तो इंग्लिश में कितने होंगे, टोटल 30 बनाने, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 13 70। दूसरा केस की है जेकर मैथ्स में 12 मार्क्स ने तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12 18 मार्क्स होंगे। ये दो डिफरेंट केसेस पॉसिबल ने, उन्हें क्या ही मार्क्स पता करो इन बोथ द सब्जेक्ट्स। पहला केस किया जो मैथ्स 13 मार्क्स ने तो इंग्लिश 17 होंगे, तो मैथ्स 12 ने तो इंग्लिश कितने होंगे 18। दोनों केसेस अपनी जी कंडीशन है सैटिस्फाइड हो रही हैं। तो नैक्सट अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 है। 6 में अपन गिवन द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. अपन एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, रेक्टेंगुलर फील्ड में डायगोनल भी अपन दस्या होगा। आप अज्यूम कर रहे हैं लेट शॉर्टर साइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर लॉन्ग। आप मान लेने लेट शॉर्टर साइड इज x मीटर लॉन्ग, तो ये शॉर्टर साइड x मीटर है तो उन्हें प्रॉब्लम से अपन दस्या होगा कि जो डायगोनल है वो ये 60 मीटर ज़्यादा है, तो जी लॉन्गर साइड है शॉर्टर साइड नालों 30 मीटर ज़्यादा है। तो आपको पता गा कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है वो इतने 90 डिग्री का एंगल बनता, तो इतने आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये अपना बेस बन गया, एक परपेंडिकुलर बन गया, तो ये अपना हाइपोटेन्यूज बन गया। उसके अकॉर्डिंग की होंगे कि अपना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इतों अपना कंडीशन बन जानी है, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप जो सिंपलीफाई करांगे तो इतने अपनी आइडेंटिटी लगनी है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ए प्लस बी होल स्क्वायर कितने बराबर होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए आइडेंटिटी इतने लगा के आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये बनना 60x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट है थे इज इक्वल टू इधर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर रखा गया अपने को 3600 प्लस 2ab, ये बनेगा 120x। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आने, इधर ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ए वाले सारे टर्म्स एक साइड पे लेके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंपलीफाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह गया कल एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x, ये बन गया माइनस 60x 900 माइनस 3600, ये बन गया अपना माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए आप फिर कोई भी तरीका लगा सकते हैं, तो आप पहले स्टैंडर्ड के नाल कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना,
तो आप कह सकते कि ए की वैल्यू 1 अपनी, बी की वैल्यू -60 है तो सी की वैल्यू -2700 आ गई। तो आप इतों बी स्केयर -4 की वैल्यू पहला पता कर देंगे। बी का स्केयर किया -60 का स्केयर हो गया, -4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है -2700। सिंपलीफाई करके इनू लिख सकते हैं 3600 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 जो आप 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ए 2 zeros एज इट रहेगा, दोनों ऐड करके अपना आ जाना है 14400 जो ग्रेटर दैन 0 आ, मीनिंग अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो जो सिंपलीफाई कर सकते हैं तो एक्स की वैल्यू अपनी की होंगी है, तो एक्स की वैल्यू अपनी होंगी है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्केयर -4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए। बी की वैल्यू अपने को कितनी है -60, माइनस माइनस होगा प्लस 60 प्लस माइनस बी स्केयर -4ac, ये अपना है 14400 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू अपनी है 1। तो फर्दर सिंपलीफाई करके बन गया है इधर जो आप स्क्वायर रूट करांगे तो इन्हें आना 120 डिवाइड बाय 2। हुण एक बार आप प्लस के नाल ते एक बार आप माइनस के नाल इनू लिखांगे। तो प्लस के नाल जो लिखांगे तो 160 प्लस 120 बाय 2 ते दूसरी बार आप लिखांगे माइनस के नाल 160 माइनस 120 बाय 2, एक बार प्लस के नाल एक बार माइनस के नाल। प्लस के नाल करके हो गया 180 डिवाइड बाय 2, इत्थों हो गया है -60 बाय 2, इतों अपनी वैल्यू होगी 90 तो इतों वैल्यू होगी अपनी -30। -30 आप रिजेक्ट करांगे क्योंकि कोई भी लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हैं कि शॉर्टर साइड की लेंथ कितनी हैगी 90 मीटर हैगी। तो ये लेंथ तो अपनी लेंथ कितनी होगी, इतों आप शॉर्टर साइड कढ़ीगी ब्रेथ वो कितनी हैगी 90 मीटर, तो लेंथ कितनी होगी फिर x + 30 90 + 30 कितनी होगी 120 मीटर। क्लीयर। तो अज इस तो नैक्सट जी प्रॉब्लम अपनी गिवन है इतने वो है प्रॉब्लम नंबर 7 के गिवन है इतने द डिफरेंस ऑफ द स्केयर्स ऑफ 2 numbers is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the 2 numbers। अपन 2 नंबर के स्केयर का डिफरेंस दिता है, आप मान लें लेट फर्स्ट नंबर x ते सैकंड नंबर y। आप मान लें जो x है लेट x इज ग्रेटर दैन y, x को आप बड़ा नंबर मान लें तो y को आप स्मॉलर नंबर अज्यूम कर लें। तो उन्होंने गिवन है कि जेडे उन्होंने स्केयर्स का डिफरेंस है वो कितना है द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 numbers इज 180। पहली कंडीशन अपनी गिवन होगी। दूसरी कंडीशन जो उन्हें कहा द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर आप कहना मैंने y, स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर, 8 times द लार्जर नंबर केड़ा अपना x, जेड़ा स्केयर आ स्मॉलर नंबर दा वो 8 टाइम आ लार्जर नंबर दा। ये अपनी दूसरी कंडीशन गिवन हैगी। इत्थों y स्केयर दी वैल्यू आप सबस्टिट्यूट करते हैं पहली नंबर दे विच, तो आप लिख सकते हैं सबस्टिट्यूट 2 इन 1, तो आना कि अपना x स्केयर y स्केयर की वैल्यू कितनी हैगी 8x, ए माइनस एज इट रह गया, ये 180 उधर जाके बन गया -180 इज इक्वल टू 0। फिर आप स्टैंडर्ड के नाल कंपेयर करांगे तो ए की वैल्यू अपने को आनी है 1, बी की वैल्यू -8 ते सी की वैल्यू आनी है -180। तो अपने को बी स्केयर -4ac की वैल्यू आनी है की होनी है बी का स्केयर किया -8 का स्केयर -4 इंटू ए इंटू सी, सिंपलीफाई करके बन गया 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 18 किया 720 प्लस 64 7
84 दैट इज ग्रेटर देन 0। ये जे ग्रेटर देन 0 तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है x की वैल्यू की होगी, फिर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का अनरूट डिवाइड बाय 2 इंटू ए। माइनस बी कितना गया, माइनस और माइनस 8, ए बन गया प्लस का 8 प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac या 784 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी अपनी 1। स्केयर रूट किमें फाइंड करने ने, यदि आप एक अलग तो वीडियो बनावांगे, इत्थे मैं डायरैक्ट दस देना। ਇਹਦਾ स्केयर रूट अपना आ गया 28 डिवाइड बाई 2। एक बार आप प्लस के नाल लिखांगे, एक बार आप माइनस के नाल लिखांगे। जो प्लस के नाल लिखे आप 8 प्लस 28 ये होगा 36 डिवाइड बाई 2। इतों है 8 माइनस 28 माइनस 20 बाई 2। इतों एक्स की वैल्यू हो गई अपनी 18, इतों होगी माइनस 10। एक्स की वैल्यू आप नैगेटिव नहीं लैनी। क्यों नहीं नैगेटिव लैनी, क्योंकि जो आप एक्स की वैल्यू नैगेटिव लैनी तो इतने भरांगे तो किसी नंबर का स्केयर आ जो नैगेटिव आ जाना, वो तो पॉसीबल ही नहीं है। इसलिए आप एक्स की वैल्यू माइनस जी 10 आ रही हैगी, इनू आप रिजेक्ट कर देंगे तो आप एक्स की वैल्यू कितनी बनांगे 18। तो जे एक्स की वैल्यू 18 है तो वाई की वैल्यू कितनी होनी है, क्योंकि आप दोनों नंबर पता करने ने। पहला नंबर अपना एक्स सीगा वो है 18 तो दूसरा नंबर अपना कितना है वो अपन इतों पता लगेगा। तो आप लिख सकते हैं वाई स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। 8 जा 144 तो इतों वाई की वैल्यू अपन को कितनी होनी है प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 144 ये है प्लस माइनस 12। मीनिंग के नंबर्स की हो सकते हैं अपने 18 एंड 12 हो सकते हैं ਜਾਂ 18 एंड माइनस 12 हो सकते हैं। उस टाइम ते ये दोनों कंडीशन अपन सैटिस्फाइड होनी। नैक्सट प्रॉब्लम नंबर 8 में आपको गिवन है ए ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लैस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अपन 360 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन आ, डिस्टेंस है जी 360 किलोमीटर गिवन आ, तो स्पीड जी ट्रेन की अपने पता करनी है। आप अज्यूम कर रहे हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो आपको एक आइडेंटिटी पता गई जी आप फिजिक्स में स्टडी की हुई है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इतने उन्हें टाइम की गल की भी जो स्पीड बढ़ा दी आप टाइम है जो घट जाएगा। तो आप इतों टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इनू रीअरेंज करके टाइम इतने ले जाने तो बना डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो पहले केस के जो स्पीड आ वो x किलोमीटर पर आवर, आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर एट दिस स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड कितनी अपनी x। तो इन्ने घंटे अपन लगनगे, ये घंटे के आएगा टाइम। तो सैकेंड केस उन्होंने कहा जे आप स्पीड है जी ट्रेन की हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, जे आप स्पीड बढ़ा दें 5 किलोमीटर, आप लिखेंगे इतने फिर इनक्रीज स्पीड कितनी होनी है, इनक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन। जी इनक्रीज स्पीड हैगी उन्होंने 5 किलोमीटर बढ़ाती तो ये होनी है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इन्नी स्पीड बढ़ाने इन्नी डिस्टेंस कवर करने इस केस इट वुड हैव टेकन 1 आवर लैस, उन्होंने 1 घंटा घट लगता। तो आप लिखांगे जो डिक्रीज टाइम कितना हो गया या न्यू टाइम कह दी आप। इतने कितनी होगी डिस्टेंस कितनी 360 अगेन तो नवी स्पीड कितनी अपनी x प्लस 5। जोड़ा यह वाला टाइम आया वो पहला वाले टाइम कितना घट है 1 घंटा घट। तो आप लिख सकते हैं इतने पहला वाला टाइम कितना 360 डिवाइड बाई x तो न्यू टाइम कितना 360 डिवाइड बाई x प्लस 5।
इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस है कितना होगा, वो 1 घंटा घट जाता, तो मीन के इज इक्वल टू 1। हुण जे आपां नूं सिंपलीफाई करिए तो आपां नूं एलसीएम लैके लिख सकते हैं। एलसीएम डिनोमीनेटर विच डायरैक्ट मल्टीप्लाई हो जाना, एक्स नूं एक्स नाल कीता हो गया एक्स स्केयर प्लस एक्स नूं 5 नाल कीता होगा 5x, उपर न्यूमीनेटर विच ये 360 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई होना, तो 360 इंटू एक्स 360 इंटू एक्स 360 इंटू 5 ये अपना ना 1800 माइनस साइन एज एक्स इंटू 360 माइनस 360x इज इक्वल टू 1। तो फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए ਜਿਹੜਾ ਇਹ 360 ਆ ਇਹ 360 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 5x ਇੰਟੂ 1 x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 5x ਇੰਟੂ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1800 ਇੰਟੂ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1800। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮਾਈਨਸ 1800 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ तो आप कह सकते हैं कि ए की वैल्यू इतों कि आएगी 1, तो बी की वैल्यू हैगी 5, तो सी की वैल्यू होगी माइनस 1800। तो सिंपलीफाई करने के लिए तो जे आप बी स्केयर माइनस 4ac फाइंड करिए, बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस 1800। सॉल्व करके 1 ऑफ 5 का स्केयर 25 माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 72, दीज 2 zeros एडिट, दोनों ऐड करके बन गए 7225। एक ग्रेटर दैन 0 आ मीनिंग कि आप एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी की होंगी एक्स की वैल्यूज फाइंड करने वाली, एक्स इज इक्वल टू नैगेटिव ऑफ बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। ये सारी वैल्यूज आप इतने सबस्टिट्यूट कर देंगे, सबस्टिट्यूट करके वैल्यूज b की वैल्यू कितनी होगी 5 है माइनस 5 प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac इसकी वैल्यू है 7225 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। हम इन फर्दर सिंपलीफाई करके आप लिखांगे x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस जो स्केयर रूट है यदा डायरैक्ट आप एक मैं फार्मूला तुम दसूँगा वो आप अलग दो वीडियो बनावे, इतने मैं डायरैक्ट आंसर लिख देना, यदा स्केयर रूट होगा 85 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2। इतों एक बारी आप प्लस के लिखांगे तो एक बार माइनस के प्लस 85 डिवाइड बाई 2, एक बार आप लिखते हैं माइनस के नाल माइनस 85 डिवाइड बाई 2 प्लस करके बनना माइनस 5 प्लस 85, इतों बनना ने 80 डिवाइड बाई 2 तो इतों बनना ने माइनस 90 डिवाइड बाई 2। इनू सॉल्व करके बनना 4040, इतने बनना माइनस 45। आपने एक्स की जूम की स्पीड जी स्पीड है वो नैगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो जी ट्रेन की स्पीड है कितनी होनी है 40 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द ट्रेन ये अपनी आ जानी 40 किलोमीटर पर आवर। अगे जी प्रॉब्लम नंबर 9 हैगी, उत्थे अपन गिवन है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. इत्थे जेहड़ा अपन क्वाइंट टाइम गिवन है वो 9 and 3/8 hours। जे अपन सिंपलीफाई करिए 9 it is 72 plus 375/8 hours। तो इन्हें अपन कहा जी स्मॉलर टैप वाली वो 10 घंटे वध लेंदी है लार्जर टैप नाल, तो आप लिखते हैं लेट
टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप आप मान लेना एक्स आर जो लेंदी है भर ली तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना होगा वो 10 घंटे घट लै रही है इस तो होगा एक्स माइनस 10 आवर्स तो आपको पहले स्टडी किया अपने तो जो कोई काम कंप्लीट करने 2 आवर्स लेंदा तो 1 आवर में हाफ जो वर्कआउट कंप्लीट कर देगा जो 3 आवर्स लेंदा तो 1/3 पार्ट 1 घंटे में पूरा कर देगा तो जो 4 आवर्स लेंदा तो 1 घंटे में 1/4 पार्ट जो कंप्लीट कर देगा। सिमिलरली आप इतने देख सकते हैं तो जी स्मॉलर टैप है जो एक्स आवर्स लेंदी है फिल कर ली तो आप लिखेंगे इन 1 आवर स्मॉलर टैप कैन फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक जी स्मॉलर टैप है वो 1 घंटे में 1/x पार्ट है वो फिल कर देगी जी लार्जर टैप है इट कैन फिल 1/x माइनस 10th पार्ट तो जो दोनों इकट्ठियां चलाइए तो आप 75/8 आवर्स लेंगे ने तो 1 घंटे में किन्ने पार्ट भर देंगे 8/75 तो जे इतने दोनों इकट्ठियां चलाइए तो ये अपना को 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू ये टोटल पार्ट दोनों इकट्ठे ने फिल किया इकट्ठे घंटे कितना फिल कर दिया 8/75 इनू सिंपलीफाई करा जो तो आप एलसीएम लैके सिंपलीफाई करते हैं ए एक्स माइनस 10 1 के मल्टीप्लाई होना एक्स माइनस 10 इतने है ना एक्स नू 1 के मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75 ये एक्स प्लस एक्स अपना हो जाना 2x एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75 इंटू 2x ये बनना अपना 150x माइनस 10 इंटू 75 माइनस 750 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्केयर माइनस 8 इंटू 10x माइनस 80x फर्दर आप जो सिंपलीफाई करांगे तो सारी टर्म्स आप एक साइड ते लेके आवांगे एक साइड ते लेके ए इधर है ना 8x स्केयर माइनस 80x ये उधर जाके होना माइनस 150x ये उधर होना प्लस 750 इज इक्वल टू 0 सिंपलीफाई करके बना है 8x स्केयर दोनों ऐड करके हो रहा है 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 तो इन होर सिंपलीफाई करने के लिए आप 2 के ऊपर डिवाइड कर देने 2 से डिवाइड करके बनना 4x स्केयर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0 तो जो आप स्टैंडर्ड के नाल कंपेयर करिए तो आप को ए की वैल्यू होनी है 4 बी की वैल्यू होनी माइनस 115 तो सी की वैल्यू होनी 375 तो फिर आपको बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी बी स्केयर माइनस 4ac अपना होना माइनस 115 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू अपने को 4 आ सी की वैल्यू अपने को है 375 जो आप इतने स्केयर करेंगे माइनस का स्केयर करने से प्लस बनना स्केयर करने का शॉर्टकट है इतने शॉर्टकट के अकॉर्डिंग जो आप 11 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 5 देना 25 मीनिंग कि इसका स्केयर बनाना 13225 तो इतने सिंपलीफाई करने के लिए आप अपने मैथड कैलकुलेट कर लो ये मेरा मैथड अपना 25 इंटू 400 इतने कट के अपना 15 460 ये अपना बनना 6000 तो सॉल्व करके रहना है 13 माइनस 6 7225 एक ग्रेटर दैन 0 आ मीनिंग कि आप इनू सिंपलीफाई कर सकते हैं तो सिंपलीफाई करके अपने को जी एक्स की वैल्यू आती है वो होंगी नैगेटिव ऑफ बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a ये सारी वैल्यू जो आप फिल करांगे तो एक्स की वैल्यू अपने की होनी है नैगेटिव ऑफ बी माइनस ऑफ माइनस ए प्लस 115 हो जाएगा प्लस माइनस
b square minus 4ac 7225 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 4 अपने को। हम आप इस तो फर्दर इन सिंपलीफाई करते हैं। ये अपना है ना 150 प्लस माइनस ਇਹਦਾ स्केयर रूट ਆਪਾਂ 85 ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 into 2 ਆਪਣਾ ਹੈ 8 ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ प्लस ਨਾਲ लिखेगा 115 प्लस 85 डिवाइड बाई 8 तो माइनस ਨਾਲ लिख के गया है 115 माइनस 85 डिवाइड बाई 8 इतने ऐड करके बन गया है 115 प्लस 85 200 डिवाइड बाई 8 इतने सबट्रैक्ट करके बन गया है 30 बाई 8 जी इतों वैल्यू आई 200 बाई 8 ये अपनी गई 25 तो इतों अपने को आ गई है 15 बाई 4 जी नीयर अबाउट ही वैल्यू आ रही है आप कैंसल करके देखिए तो 15 इतने 4 तो नैक्सट अपन लिख सकते हैं अपनी 3 पॉइंट समथिंग हैगी 3.75 तो इन्होंने अपन कहा जो टाइम आ ये स्मॉलर का आप मनिया ये स्मॉलर आप 3.75 मानते हैं तो लार्जर टैप ने 10 घंटे घट लेने तो जो 3.75 जो 10 माइनस करा तो वो टाइम जो नैगेटिव लेना इसलिए आप ये वाला टाइम नहीं बन सकते। तो दूसरा केस आप इसलिए 25 मनांगे क्योंकि जो 25 जो 10 माइनस भी करा तो 15 रह जाना मीनिंग कि जी स्मॉलर टैप आ गई वो 25 आवर्स लेंदी है फिल करने जी लार्जर टैप आ गई वो 25 माइनस 10 15 आवर्स लेंदी है फिल करने के लिए। तो नैक्सट आप देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. अपन distance इसके two cities का distance अपन given है थे 132 किलोमीटर तो आपको आइडेंटिटी पता ही स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम तो आप रीअरेंज करके टाइम लिख सकते हैं डिस्टेंस ओवर स्पीड। आपको गिवन है इतने जी एक्सप्रैस ट्रेन 1 आवर लैस लेंदी है जी पैसेंजर ट्रेन के जी एक्सप्रैस ट्रेन की स्पीड हैगी वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हैगी पैसेंजर ट्रेन के तो आप स्पीड मान लें लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आप मान लो x किलोमीटर पर आवर तो जी स्पीड है फिर वो एक्सप्रैस ट्रेन की कितनी होनी है एक्सप्रैस ट्रेन की जी स्पीड हैगी वो यही स्पीड के नालों 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो टाइम कि लैनी दोनों तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी डिस्टेंस ओवर स्पीड डिस्टेंस है 132 तो पैसेंजर ट्रेन की जी स्पीड आ गई वो कितनी हैगी x किलोमीटर पर आवर तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय एक्सप्रैस ट्रेन कितना गा डिस्टेंस यदि 132 होगी तो यदि स्पीड है पर x + 11 एक्सप्रैस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के नालों एक घट लेंदी आ तो इन्हों का जो डिफरेंस है 132 डिवाइड बाई x माइनस 132 डिवाइड बाई x + 11 ये कितना आएगा 1 आ रहेगा। तो इन्हू सिंपलीफाई करने के लिए आप एलसीएम लेने डिनोमीनेटर के ये होना x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 11x न्यूमीनेटर के अपना होना 132 इंटू एक्स 132x 132 इंटू 11 ये अपना होना 1452 माइनस x इंटू 132 माइनस 132x इज इक्वल टू 1। तो फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
132 ਦੇ ਨਾਲ 132 ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ x ਸਕੁਅਰ प्लस 11x, ਇੱਥੇ ਨਾ 1452, ਇਹ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ -1452 इज इक्वल टू 0। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ 1, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ 11 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ -1452। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ b ਸਕੁਅਰ -4ac ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -4 into a वैल्यू 1 into c वैल्यू है -1452 ਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 121 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ 14456 258, ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ 5808 ਤੇ ਦੋਨੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਇਹ 5929, ਇਹ ਆਪਣਾ ग्रेटर देन 0 होगा ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ -4ac डिवाइड बाय 2 into a। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11, ਇਹਨਾਂ -11 प्लस माइनस 5929 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 into a, e ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ 2 into 1 2 ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾਗਾ इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ 77 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, प्लस ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਨਾ +77 डिवाइड बाय 2 ਤੇ माइनस ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਨਾ -77 डिवाइड बाय 2। इतना ना 77 -11 66 66 by 2 अपना होना 33 -11 ਤੇ -77 -88 by 2 -44। ਇਹ ਸਪੀਡ ਆਈ, ਸਪੀਡ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ -44 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਬਚਦਾ 33। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ 33 किलोमीटर पर आवर। ਜਿਹੜੀ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 33 + 11 44 किलोमीटर पर आवर। तो नैक्सट आप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 तो लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज की, इस अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन आ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeters is 24 meter then find the sides of the two squares। अपन दो स्क्वायर्स देते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਉਹ x ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ y ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ x ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲਰ ਸਕੁਅਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਉਹ y ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ x ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਸਕੁਅਰ x मीटर एंड साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज y मीटर। तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर की होगा x स्क्वायर, अपन गिवन अ सम ऑफ देयर एरियाज। तो आप ਇਹਦਾ एरिया फाइंड करेंगे x स्क्वायर आ गया, ਇਹਦਾ एरिया फाइंड करेंगे तो अपना आ गया y स्क्वायर। दोनों ਦੇ एरिया ਜਿਹੜਾ सम गिवन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 468 मीटर स्क्वायर। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ देयर ਪੈਰੀਮੀਟਰਸ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ। तो टोटल 4 साइड्स ने ते हरेक दी जिहड़ी लेंथ है x हैगी, ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ 4x ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ 4y। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ देयर ਪੈਰੀਮੀਟਰਸ ਇਜ਼ 24 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ 24। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਵੜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਨਾ x - y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 6 + y। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 नंबर मार्क कर लिए।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਇਨ 1 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 + y ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਹੈ ਨਾ 6 + y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इत्थे अपना फार्मूला लगना a + b होल स्क्वायर वाला 6 का स्क्वायर किया 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y a y स्क्वायर अपना एज इट आ गया इज इक्वल टू 468। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्रमाण 2y स्क्वायर 12y एज इट रह गया अपना ये 468 इधरली साइड आके अपना बन गया -468। तो आप लिखेंगे 36 -468 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपलीफाई करके अपना की बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 12y ये इतने डिफरेंस लेके बनना 432। तेन सिंपलीफाई कर लिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके इन्हें बनना अपना y स्क्वायर प्लस 6y इन्हें रहना 216 इज इक्वल टू 0। तो जो अपन नैक्सट इन सिंपलीफाई करांगे अपन कंपेयर करिए तो आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 1 b की वैल्यू कितनी है 6 तो c की वैल्यू कितनी है -216। तो b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी है ये 6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c है -216। 6 का स्क्वायर का 36 माइनस प्लस 4 इंटू 216 ये 864 दोनों ऐड करके अपना गया 900 एक ग्रेटर देन 0 तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड करना सिमिलर मैथड है क्योंकि जी अपनी गिवन इक्वेशन सी वो अपनी y के टर्म में सी तो आप इस बार लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a क्योंकि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी वो इन टर्म्स ऑफ y सी इसलिए आप y लिखे थे। तो सारी वैल्यू भर के y b की वैल्यू कितनी है 6 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना अपना 900 है डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। इन फर्दर सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट होंगे अपना 30 डिवाइड बाय 2। तो एक बार आप प्लस के नाल लिखांगे तो एक बार आप माइनस के नाल लिखांगे। सिंपलीफाई करके पहले तो यदि वैल्यू आनी है -6 प्लस 30 24/2 24/2 अपना ना 12 इथों ना -36/2 -18 अपन पता y की हैगी y एक साइड हैगी जी साइड है नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए अपन रिजेक्ट कर देंगे तो हम y की वैल्यू कितनी हैगी 12 आ गई। तो जो y की वैल्यू 12 आ गई तो इतने भर के x की वैल्यू कितनी आएगी अपने को x इज इक्वल टू 6 + y 6 + 12 वैल्यू भर के अपना 18। तो दोनों साइड जब पता करनी सी जो स्मॉलर स्केयर वो साइड है 12 मीटर तो लार्जर स्केयर वो साइड है 18 मीटर। ये अपनी एक्सरसाइज पूरी होगी। तो जे तुहानू कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सैक्शन में जरूर लिखियो। तो जो पढ़ाने का तरीका वधिया लगे तो अपने फ्रेंड्स के नाल भी शेयर करो तो चैनल को सबसक्राइब करो।